Hello everyone, welcome to 365 Days to IIT series. Let's have a look at question of day number 23. So before we start solving the question of day number 23, let's have a look at question of day number 24, which you can practice and write your answer in the comment section. So this is our question number 24. A student has requested me for block over block problems. To be very honest, these questions are not of advanced level, but it's not always about the level of the question, but it's about the concepts. If you are solid in your concepts, you can do any question. So try this out, try this question, and you can give me the answer in the comment section. And meanwhile, कल हम ये सवाल करेंगे, इसके कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे. इसी वजह से मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे पाऊं एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट. लेटर ऑन in next questions or next day's question, I'll be taking some difficult question of block over block problems so that आपको समझने में और आसानी हो और आप इस तरह के सवाल बहुत आसानी से कर पाएं. तो take a screenshot or you can pause the video and try to solve these questions and you can write your answer in the comment section. Meanwhile, let's move back to a question of day number 23. So here is the question. It's a great question of projectile motion. Let's try to solve it. A fighter plane is flying horizontally at a height of 250 meters from ground with constant velocity of 500 meters per second. Okay. It passes exactly over a cannon which can fire a shell at any time in any direction with a speed of 100 meters per second. ठीक है. Find the duration of time for which the plane is in danger of being hit by a cannon shell. तो जो आपको सिनेरियो गिवन है वो कुछ इस तरह से है. आओ सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. There is a This is a fighter jet and it is going with a constant speed of 500 meters per second. All right, like this. Clear? Now, on the ground, there is a cannon. Suppose here, this is your cannon. And it can fire at any time and in any angle, in any direction, with a speed of 100 meters per second. Now, this height is given to be 250 meters. Now, the question is, what is the duration of the time for which this plane is in danger of being hit by the cannon shell? अब ये जो प्लेन उड़ रहा है इस कैनन के ऊपर, अब कैनन का शेल इसको कितने समय के लिए हिट कर सकता है वो ड्यूरेशन बतानी है आपको. मतलब कि कितने समय के लिए जो आपका ये फाइटर जेट है ये खतरे में है वो बताना है आपको. अब इसमें प्रोसीड कैसे करें, सोचने वाली बात ये है. अब बेसिकली आप देखो जो आपका कैनन है विच कैन हिट एन एट एनी एंगल इन एनी डायरेक्शन. सो बेसिकली द शेल ट्रेजेक्टरी विल बी प्रोजेक्टाइल. इट्स ऑब्वियस है ना. द ट्रेजेक्टरी ऑफ द शेल is projectile. All right. Can you give me the general equation of projectile motion? It is given as y is equal to x tangent theta minus gx square by 2u square square theta. है ना? So this is your general equation. Projectile motion. Fine. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? सेकेंड स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को आप ऊपर ले जाओ तो क्या आया? सेकेंड स्क्वायर थीटा. अब फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं. ठीक है. So this is one of the way to write the equation of projectile motion, general equation. All right. Now this y is the y coordinate of the shell for a particular x,
राइट। अब जो ये y है भैया, ये x के साथ रिलेटेड है और साथ में थीटा के साथ भी रिलेटेड है। अब थीटा भी वेरिएबल है हमारा। मैं जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू नो what can be the maximum height which can be achieved by this cannon shell for a particular x। देखो मैं क्या कह रहा हूं, लेट्स फाइंड आउट y max for this cannon shell for a particular value of x। So let's find out the value of tangent theta at which we can get this y max। Let us find out the value of tangent theta so that we can get y max for particular x। Instead of looking for a particular theta at which this y can be maximum, I rather selected tangent theta value। आप थीटा भी चेक कर सकते हो कि किस पर्टिकुलर थीटा के लिए ये y मैक्सिमम होगा। जनरली ऐसे ही अप्रोच किया जाता है, पर इक्वेशन में टेंजेंट थीटा है तो क्यों ना मैं पूरे टेंजेंट थीटा की वो वैल्यू देख लूं जिस पे y मैक्सिमम हो। आसान हो जाएगा हमारे लिए। कैसे, ये देखो। Let's suppose this equation is equation number 1। Now what I am doing is I am differentiating equation number 1 with respect to tangent theta। Rather than differentiating it with respect to theta, I am differentiating it with respect to tangent theta। All right. So that for particular tangent theta, instead of theta, for a particular tangent theta value, I'll get y max। तो देखो, dy by d tangent theta is equal to x। टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u² 0 प्लस 2 टेंजेंट थीटा एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा। अब x, इसमें हम एक पर्टिकुलर x के लिए y मैक्सिमम देख रहे हैं तो x आपका वेरिएबल नहीं है। अब आप पर्टिकुलर एक पिन पॉइंट x लोकेशन के लिए y मैक्स देखना चाह रहे हो, तो जैसे जैसे आपका x चेंज होगा वैसे वैसे आपका y ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो अब क्या करें, x इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाय 2u² इंटू 2 टेंजेंट थीटा। यहां से क्या आया टेंजेंट थीटा की वैल्यू, u² बाय जी एक्स। सो फॉर दिस पर्टिकुलर टेंजेंट थीटा वी हैव y मैक्स। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब इस टेंजेंट थीटा की वैल्यू आई एम पुटिंग बैक इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आया, y इज इक्वल टू एक्स u² बाय जी एक्स माइनस, अब नाउ दिस y इज मैक्सिमम, जी एक्स स्क्वायर बाय 2u² 1 प्लस u की पावर 4 बाय जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन बनी मेरे पास। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x से x गया, u² बाय जी माइनस ठीक है, ये u² और u4 में u² बचेगा, नीचे 2 बचेगा, एक जी से जी गया और x² से x² गया। ठीक है, तो y मैक्स आया मेरा u² बाय 2g माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u²।
This is the maximum height reached by the cannon shell for a particular x. I am writing it here. हर पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर y की वैल्यू आएगी। क्लियर है ना? जैसे जो भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसमें हर जगह पे x की कुछ वैल्यू होगी, x कोऑर्डिनेट होगा, उस हर x कोऑर्डिनेट के लिए ये y की वैल्यू, y मैक्स की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। ठीक, पर अगर ये किसी पर्टिकुलर x के लिए मैक्सिमम हाइट है जो कैनन शेल की जा सकती है, तो प्लेन, इससे मेरे को क्या पता चला कि प्लेन डेंजर में कब होगा मेरा? अब प्लेन कितनी हाइट पे उड़ रहा है सर? 250 मीटर, 250 मीटर। अब कैनन कितने हाइट तक शेल को फेंक सकती है सर? ये अभी निकाला हमने वाई मैक्स। तो अगर ये वाई मैक्स की वैल्यू जो कैनन शेल की आई है, अगर ये 250 मीटर के बराबर या उससे बड़ी हो, तो कैनन शेल आपका फाइटर जेट को हिट कर सकता है। अगर भाई साहब ये हाइट, अगर आपकी जो कैनन शेल की वाई मैक्स आई है, अगर ये देखो, ये देखो, ये ऐसे जाएगा। क्लियर? जब तक इसका वाई मैक्स, ये वाई मैक्स इस 250 मीटर के बराबर या इससे बड़ा ना हुआ, तब तक तो इसको हिट करने की बात ही नहीं उठती। अगर इसका प्रोजेक्टाइल में वाई मैक्सिमम, ये वाई मैक्सिमम अगर लेस देन 250 मीटर रह गया, तो क्या कभी इस फाइटर जेट को हिट करेगा? नेवर, कभी हिट नहीं करेगा। वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी कैनन शेल। तो खतरे में किस बात का? खतरे में तो तब है ना जब कैनन शेल उस फाइटर जेट को टकरा जाए, भिड़ जाए, ब्लास्ट कर जाए। उसके लिए इस से इसके द्वारा फायर किया गया कैनन शेल 250 मीटर या उससे बड़ा होना चाहिए। क्लियर? तो मैंने क्या बोला? फॉर कैनन शेल टू हिट द फाइटर जेट, y max must be greater than or equal to 250 मीटर। इनइक्वालिटी यूज कर रहे हैं तो क्या आया? u स्क्वायर बाय 2g माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 250 मीटर। एलसीएम ले लें, u की पावर 4 माइनस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 250 मीटर। बस अब हमें पता है क्या? इधर आ जाओ। u की वैल्यू तो 100 मीटर पर सेकंड है, कैनन शेल की वैल्यू तो 100 मीटर पर सेकंड है जिससे वो फायर किया। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। बस देखो फिर आगे वैल्यू पुट कर दूं। 100 की पावर 4 माइनस 100 एक्स स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 100 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 250 मीटर। अब जो जो कॉमन है वो काट दो। 100 इसमें से निकल गया, 100 यहाँ से निकल गया और इसकी पावर 3 रहेगी। तो ये आया 3 4 5 6 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2000 ग्रेटर देन इक्वल टू 250 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5 6, 25 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 4 लिख दूं तो 1 2 3 4 5 6, 5 इंटू 10 की पावर 5 लिख दूं। अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5। तो इधर तो है 10 लाख लेफ्ट साइड में, ये कितना है? हाँ ये है 10 लाख और ये है 5 लाख। तो क्या आया? 10 लाख माइनस 5 लाख ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 5 लाख। तो x इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 लाख।
प्लस माइनस। क्लियर? तो ये आया 2 2 तो 100 और अंदर जा 50 इंटू 5√2। ठीक है, आप सोल्व कर सकते हो, इतना तो कुछ खास नहीं है। तो x इज लेस देन इक्वल टू 500√2 प्लस माइनस। तो ये x क्या आया? ये x बेसिकली आपकी रेंज ऑफ प्लेन आ गई जिसमें वो खतरे में है, फॉर विच इट इज इन डेंजर। तो प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हो? जो आपका प्लेन था, तो प्लेन के लिए 500√2 मीटर तो इधर, और -500√2 का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड। ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव है। तो टोटल कितनी डिस्टेंस है जिसके लिए आपका फाइटर जेट मुसीबत में है? टोटल डिस्टेंस फॉर विच द फाइटर जेट इज इन डेंजर। क्या करूं? 500√2 प्लस 1000√2 मीटर। अब इसी रफ्तार कितनी है? 500 मीटर पर सेकंड। तो कितना समय लेगा ये दूरी तय करने के लिए? जो ये डेंजर वाला दूरी है 1000√2 मीटर, इसको तय करने में कितना समय लेगा? टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस 1000√2 बाय 500 मीटर पर सेकंड है, ये मीटर में है, 2√2 सेकंड। तो प्लेन को ये डेंजर पैच कवर करने में कितना समय लगेगा? 2√2 सेकंड। तो यही तो आपका आंसर है, फॉर विच प्लेन इज इन डेंजर। क्लियर? आई होप सो आपको समझ आया होगा। एक अच्छा सवाल। कहने का मतलब ये है कि ये फाइटर, सॉरी, ये कैनन आपकी किसी भी डायरेक्शन में हिट कर सकती है। तो जो ये दूरी होगी, कितनी है ये? 1000√2 मीटर। इसके अंदर ही, इस दूरी के अंदर ही इसकी वाई मैक्स 250 मीटर से ज्यादा है, और तभी ये इसको हिट कर पाएगा। इसका मतलब ये वो पर्टिकुलर एरिया है जो डेंजर एरिया है। डेंजर लेंथ 1002 मीटर वाली, और इसकी स्पीड कितनी है? 500 मीटर पर सेकेंड। तो जब तक ये दूरी ये तय ना कर ले तो ये किस में रहेगा? डेंजर में। और ये तय करने के लिए इसको कितना समय लगेगा? सॉरी, 2√2 सेकंड। सो दिस इज द टाइम फॉर विच योर प्लेन इज इन डेंजर। सो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा, एंड आई सी यू अगेन with the question I have already revealed to you। ये ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम करके देखिए, ट्राई टू आंसर, लेट मी नो, और मैं आपको कल फिर मिलता हूँ, और इसका कंसेप्ट हम अच्छे से समझेंगे ताकि हम इसके और टफ क्वेश्चन कर सकें और टफ वेरिएंट कर सकें। सो टिल देन, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बेस्ट ऑफ लक, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।